عزیز طلبہ، میرا آج کا لیکچر منیر نیازی کی غزل بے چین بہت پھرنا گھبرائے ہوئے رہنا پر مبنی ہے۔ پہلے ہم منیر نیازی کی شخصیت کے حوالے سے سمجھتے ہیں۔ منیر نیازی اردو اور پنجابی کے معروف شاعر تھے۔ انہوں نے اپنی منفرد انداز شاعری اور گہرے جذباتی اظہار کے ذریعے ادب کی دنیا میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ ان کی پیدائش 1928 ہوشیارپور ہندوستان میں ہوئی۔ تقسیم ہند کے بعد وہ پاکستان منتقل ہو گئے۔ ان کی شاعری میں انسانی جذبات، عشق، غم اور بے چینی کی خوبصورت عکاسی ملتی ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے اردو اور پنجابی ادب کو نئے موضوعات اور انداز دیے۔ ان کے کلام میں فطرت اور معاشرتی مسائل کا گہرا شعور نظر آتا ہے۔ منیر نیازی کو ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں مختلف ایوارڈ سے نوازا گیا، جن میں پاکستان کا سب سے بڑا ادبی اعزاز ستارہ امتیاز بھی شامل ہے۔ ان کی شاعری آج بھی قارئین کے دلوں کو چھوتی ہے اور اردو ادب میں ان کا نام ہمیشہ زندہ و جاوید رہے گا۔ اب ان کی شاعرانہ خوبیاں۔ منیر نیازی اردو اور پنجابی زبان کے نامور شاعر تھے۔ ان کی شاعری اپنے منفرد انداز، جذباتی گہرائی اور فنی مہارت کی وجہ سے ادب کی دنیا میں ممتاز مقام رکھتی ہے۔ ان کے کلام کی چند نمایاں خوبیاں، جن میں سحر انگیز تشبیہات اور استعارات موجود ہیں۔ وہ قدرتی مناظر، روزمرہ کی چیزوں اور انسانی تجربات کو بہت خوبصورتی سے اپنی شاعری میں پیش کرتے ہیں۔ ان کی تشبیہات اور استعارات قارئین کے دلوں کو چھو لیتی ہیں۔ ان کے کلام میں جذبات کی شدت اور گہرے جذبات کا اظہار بھی نمایاں ہے۔ محبت، عشق، غم اور تنہائی کے جذبات کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ وہ اپنے اشعار میں جذبات کی گہرائی کو سادہ الفاظ میں بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کی شاعری کی ایک اور خوبی زبان کی سادگی اور روانی ہے۔ ان کے کلام میں الفاظ کا چناؤ، ترتیب نہایت سادہ اور خوبصورت ہے، جس سے ان کی شاعری ہر قاری کے لیے قابل فہم اور دلکش بن جاتی ہے۔ منیر نیازی کی شاعری میں فطرت کی خوبصورتی اور اس کے مختلف پہلوؤں کی عکاسی بھی ملتی ہے۔ ان کے کلام میں جنگل، دریا، چاند، دیگر قدرتی مناظر کا ذکر نہایت خوبصورتی سے کیا گیا ہے۔ معاشرتی مسائل اور انسانی رویوں کی عکاسی بھی منیر نیازی کی شاعری میں نمایاں ہے۔ ان کے کلام میں معاشرتی ناہمواریوں، انسانی کمزوریوں اور موجودہ دور کے مسائل پر گہری نظر ملتی ہے۔ فنی محاسن کے لحاظ سے ان کے کلام میں وزن، بحر، قافیہ بندی کی مہارت قابل دید ہے۔ الفاظ کی ترتیب اور آہنگ نہایت خوبصورت ہے، جو ان کے کلام کو موسیقیت بخشتی ہے۔ منیر نیازی کی شاعری میں خود کلامی اور ذاتی تجربات کا اظہار بھی نمایاں ہے۔ ایک ذاتی خود کلامی کا انداز پایا جاتا ہے، جو ان کی شاعری کو مزید گہرائی اور اثر بخشتا ہے۔ ان کی شاعری اپنی منفرد خصوصیات کی وجہ سے اردو اور پنجابی ادب میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ جذبات کی گہرائی، سادگی، سلاست کا حسین امتزاج، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ادب کی دنیا میں روشن ستارے کی طرح چمکتے رہیں گے۔ اب ان کی غزل کا پہلا شعر۔ بے چین بہت پھرنا گھبرائے ہوئے رہنا، ایک آگ سی جذبوں کی دہکائے ہوئے رہنا۔ غزل کا یہ مطلع نہ صرف ان کے کلام کی خوبصورتی کا عکاس ہے، بلکہ شاعری کی گہرائی اور جذباتی وسعت کو بھی نمایاں کرتا ہے۔ انسانی دل کی بے چینی اور اضطراب کو بیان کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ دل میں قرار نہیں ہے، ہر وقت بے چینی، بے قراری کی حالت رہتی ہے، اور اس بے چینی کی وجہ سے انسان کہیں ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا۔ آگ بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے جذبوں کی شدت، محبت کی تپش اور اندرونی اضطراب کے لیے، اور یہ استعارہ شاعر کی اندرونی حالت کو بھی بیان کرتا ہے کہ وہ جذبات کی آگ میں جل رہا ہے۔ اس مصرعے میں انسانی دل کی عام اور پیچیدہ حالت کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب انسان کو کسی چیز کی فکر یا کسی بات کا خوف ہوتا ہے، اس سے انسان کے اندرونی جذبات اور خیالات بھی متاثر ہوتے ہیں۔ جذبات کی شدت دوسرے مصرعے میں بیان کرتے ہوئے ان کی گرمی کو آگ سے تشبیہ دی ہے۔ ایک آگ سی جذبوں کی دہکائے ہوئے رہنا، یعنی دل میں جذبات کی ایسی شدت ہے کہ وہ اندر سے جلتا رہتا ہے۔ شاعر یہاں جذبوں کی شدت کو آگ قرار دے کر ان کی طاقت اور اثر کو نمایاں کر رہے ہیں۔ آگ کی طرح جذبات بھی جلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ جذبات انسان کو مسلسل بے چینی اور اضطراب کی کیفیت میں مبتلا رکھتے ہیں۔
ये आग दिल को जलाती है, बेकरार भी करती है, उसे सुकून से महरूम भी रखती है। इंसानी दिल की दो अहम कैफियत इस शेर में नुमाया हैं, बेचैनी और जज्बों की शिद्दत। दोनों कैफियत एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये कैफियत इंसानी जिंदगी का आम तजुर्बा है जो दिल की गहराइयों से निकलते हुए इंसान की मजमूई जिंदगी को मुतासिर करता है। अगला शेर, छलकाए हुए चलना खुशबू लबे लाली की, एक बाग सा साथ अपने महकाए हुए रहना। इस शेर में शायर ने बयान किया है महबूब की खूबसूरती के हवाले से, और बाग यहाँ पर बतौर इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया है। खुशबू लबे लाली, महबूब के सुर्ख लबों की खुशबू, और बाग से मुराद खुशबूदार, खूबसूरत और पुरसकून माहौल है जो महबूब की शख्सियत और उसकी मौजूदगी की खुशबू को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। मुनीर नियाज़ी की गज़ल का ये शेर उनकी शायरी की खूबसूरती और फनकाराना महारत नुमाया करता है। पहले मिसरे में महबूब के लबों की खुशबू को बयान किया है। छलकाए हुए चलना से मुराद है कि महबूब के चलने से उसके लबों की खुशबू हर तरफ फैल रही है, जैसे कोई खुशबूदार मशरूब का जाम हो जो हर कदम पर छलक रहा हो। इस इस्तिआरे में महबूब की खूबसूरती और इसकी दिलकशी की तस्वीर कशी की गई है। खुशबू लबे लाली में शायर ने महबूब के सुर्ख लबों को लाल यानी कीमती पत्थर करार दिया है, जो कि नहायत हसीन और दिलकश है। लाल के लब सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि इनकी खुशबू भी दिल को भा जाती है। दूसरे मिसरे में बाग का इस्तिआरा है, जिसमें शायर ने महबूब की मौजूदगी को एक बाग करार दिया है। एक बाग सा साथ अपने महकाए हुए रहना, कि महबूब की मौजूदगी ऐसी है जैसे एक खुशबूदार बाग हर वक्त उसके साथ हो, जहां भी वो जाए उसकी मौजूदगी से माहौल महक जाए। शायर ने यहाँ बाग की खुशबू और महक को महबूब की शख्सियत की तासीर से मिलाया है। बाग एक ऐसी जगह है जो खूबसूरती, सुकून और खुशबू की अलामत है, और महबूब की मौजूदगी भी ऐसी ही है कि इससे माहौल में खुशबू और दिलकशी फैल जाती है। गजल का अगला शेर, इस हुस्न का शैवा है जब इश्क नजर आए, पर्दे में चले जाना, शर्माए हुए रहना। शायर ने यहाँ शर्मो हया और हुस्न की खूबसूरती को बयान किया है, और इस हवाले से उन्होंने शर्माए हुए रहना और पर्दे में चले जाना की इस्तिलाह शर्मो हया की अलामत के तौर पर इस्तेमाल की है। इंतहाई खूबसूरती से हुस्न और इश्क के ताल्लुक और शर्मो हया की नज़ाकत को बयान करते हुए शायर ने मानवियत और मोहब्बत की लताफत को समोया है। पहले मिसरे में शायर हुस्न के एक मखसूस रवैये का जिक्र कर रहा है। शेवा का मतलब आदत या तर्ज अमल से है। शायर का कहना है कि हुस्न की आदत है कि जब इश्क उसके सामने आता है तो एक मखसूस रवैया इख्तियार करता है। जब इश्क नजर आए का मतलब है कि जब मोहब्बत का इजहार होता है या आशिक की मोहब्बत आशिकार होती है। यहाँ शायर हुस्न को एक जानदार और हसास महबूब के तौर पर पेश कर रहा है जो मोहब्बत की मौजूदगी को महसूस करता है। दूसरे मिसरे में शायर हुस्न के उस रवैये को बयान करता है जो मोहब्बत के इजहार के वक्त होता है। पर्दे में चला जाने का मतलब है छुप जाना, नजर से ओझल हो जाना। ये शर्मो हया की अलामत है जो हुस्न की खूबसूरती को मजीद निखारती है। शर्माए हुए रहना का मतलब है कि हुस्न मोहब्बत के सामने शर्मा जाता है, उसकी इफ़्फ़त और पाकीज़गी की वजह से मोहब्बत का इजहार होता है तो वो पर्दे में चला जाता है। ये शर्मो हया हुस्न की नज़ाकत और उसकी पाकीज़गी का इजहार है। इस शेर में शायर ने हुस्न की आदत को शर्मो हया की अलामत के जरिए बयान किया है। शेवा, पर्दे में चले जाना, शर्माए हुए रहना जैसे अल्फाज और तराकीब शायर की फनी महारत का इजहार है। वो सादा और आम फहम अल्फाज में एक गहरी कैफियत को बयान किया है, और इसके जरिए हुस्न और इश्क की नज़ाकत को इंतहाई खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है। गजल का अगला शेर, एक शाम सी कर रखना काजल के करिश्मे से, एक चांद सा आंखों में चमकाए हुए रहना। यहाँ शायर इंतहाई खूबसूरती से महबूब की आंखों की दिलकशी और उनकी सहर अंगेजी बयान कर रहे हैं।
महबूब की आंखों में काजल के करिश्मे और इनकी चमक बहुत उम्दगी से बयान की गई है। काजल के करिश्मे से मुराद आंखों में लगाए जाने वाले काजल की खूबसूरती और जादुई असर है। ये महबूब की आंखों की दिलकशी और उनकी सहरंगेजी को जाहिर करता है। शाम सी कर रखना का मतलब है आंखों की गहराई और सहरंगेजी को शाम की तरह दिलकश और पुरकशिश बताना। इसी तरह चांद सा आंखों में चमकाए हुए रहना की इस्तिलाह शायर ने महबूब की आंखों की चमक और रोशनी, जिसे चांद की खूबसूरती से तशबीह दी गई है। शायर पहले मिसरे में महबूब की आंखों की खूबसूरती को शाम के वक्त की खूबसूरती से तशबीह देते हैं। एक शाम सी कर रखना, इसका मतलब है आंखों को शाम की तरह पुरकशिश और दिलकश बनाना। शाम का वक्त दिन और रात के दरमियान होता है, जिसमें एक खास किस्म की खामोशी, सुकून और दिलकशी होती है। काजल के करिश्मे का मतलब है कि आंखों की ये दिलकशी और पुरकशिश अंदाज काजल के इस्तेमाल की वजह से है। काजल आंखों की खूबसूरती को बढ़ाता है, उन्हें गहरा और दिलकश बनाता है। शायर ने यहाँ काजल के करिश्मे को बहुत खूबसूरती से बयान किया है, जो महबूब की आंखों की जाज़बियत को बढ़ा रहा है। दूसरे मिसरे में शायर महबूब की आंखों की चमक को चांद की रोशनी से तशबीह देते हैं। एक चांद सा आंखों में चमकाए हुए रहना, कि महबूब की आंखों में चांद की तरह चमक और रोशनी है। चांद की रोशनी नर्म, पुरकशिश और दिलकश होती है, जो रात की तारीकी में भी रोशनी फैलाती है। शायर ने महबूब की आंखों की चमक को चांद की रोशनी से मिलाया है। इस शेर में महबूब की आंखों की खूबसूरती और दिलकशी को निहायत खूबसूरती से बयान किया गया है। शायर ने काजल और चांद की तशबीहात इस्तेमाल करके महबूब की आंखों की गहराई और चमक को नुमाया किया है कि काजल की वजह से महबूब की आंखें शाम की तरह दिलकश और पुरकशिश बन जाती हैं, जबकि उनकी चमक चांद की रोशनी की तरह हर तरफ रोशनी और खूबसूरती फैलाती है। तशबीहात और इस्तिआरात के खूबसूरत इस्तेमाल से इस शेर में शायर ने फनी महारत का सबूत दिया है। गजल का आखिरी शेर। आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। आदत से मुराद किसी चीज का मामूल बन जाना या मुस्तकिल रवैया है। जिस शहर में भी रहना का मतलब है शायद किसी भी शहर में हो, उसकी जिंदगी में एक ही तरह की उकताहट और बेचैनी रहती है। उकताए हुए रहना के अल्फाज शायर ने जिंदगी की मुस्तकिल बेचैनी और अदम इत्मीनान को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए हैं। शायर अपनी एक आदत का जिक्र कर रहे हैं, इंसानी नफ्सियात की अहम और आम कैफियत बयान कर रहे हैं, जिसके जरिए बेचैनी और अदम इत्मीनान की हालत को निहायत खूबसूरती से पेश किया है। आदत का मतलब है कोई मुस्तकिल रवैया या मामूल जो जिंदगी का हिस्सा बन जाए। शायर यहाँ अपनी बेचैनी और अदम इत्मीनान की आदत को बयान कर रहे हैं। ये ऐसी बन गई है कि शायर अब इसके बगैर जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। तुमने तो मुनीर अपनी कहकर शायर अपने आप से मुखातिब हैं और अपने नाम को बतौर तखल्लुस इस्तेमाल कर रहे हैं। ये खुद कलामी शायर की अपनी ज़ात के साथ एक गहरी वाबस्तगी को जाहिर करती है। ये अल्फाज इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि यह हालत शायर की ज़िंदगी में बहुत देर से है और शायर इससे बखूबी वाकिफ भी है। दूसरे मिसरे में शायर ने अपनी बेचैनी और अदम इत्मीनान की कैफियत को मज़ीद वाज़ेह किया है। जिस शहर में भी रहना का मतलब है कि शायर कहीं भी हों, किसी भी हालत में हों, उसकी उकताहट और बेचैनी हर हाल में उसके साथ-साथ रहती है। ये कैफियत किसी भी जगह, किसी भी माहौल में उसे चैन नहीं लेने देती, ज़िंदगी के हर पहलू को मुतासिर करती है और इंसानी नफ्सियात की उस पहलू की तर्जुमान है जहाँ मुसलसल बेचैनी और अदम इत्मीनान की बदौलत इंसान कभी-कभी अपनी इन आदतों में, इन रवैयों में इतना मगन हो जाता है कि इनसे छुटकारा पाने की बजाय वो आदतें उसका हिस्सा बन जाती हैं। ये शेर हमें अपनी ज़िंदगी की आदत और रवैयों पर गौर व फ़िक्र करने की दावत देता है ताकि हम अपनी ज़िंदगी में इत्मीनान और सुकून हासिल कर सकें। शायर ने अपनी ज़िंदगी की बेचैनी और अदम इत्मीनान को इंतहाई खूबसूरती से इस गज़ल में नुमाया किया है और इस आखिरी शेर में वो ये कहते हैं कि ज़िंदगी में मुस्तकिल उकताहट और बेचैनी के असरात से ज़हनी दबाव, अदम इत्मीनान और खुशी की कमी भी हो सकती है। ये कैफियत इंसान की ज़िंदगी को खुशियों से दूर भी कर सकती है और इसकी मजमूई सेहत और ताल्लुकात को भी मनफी अंदाज में मुतासिर करती है। इसके साथ ही आज का ये लेक्चर यहीं तमाम हुआ।